ଦୁଇ ବର୍ଷର ବିଏଡ୍ ଯେଉଁଟାକି ବିଏ ବିଏସସି ପରେ ବିଏଡ୍ ଆଉ ବିଏଚଇଏଡ୍ କିମ୍ବା ଏମ୍ଏଡ୍ ଯେଉଁଟାକି ବିଏଡ୍ ପରେ ଏମ୍ଏଡ୍ କରନ୍ତି ସେଇ କୋର୍ସ କରିବା ପାଇଁ 2024-25ର ଏକାଡେମିକ୍ ସେସନ୍ରେ ଆସିଗଲା। ତେଣୁ ସାମ୍ସ ଥ୍ରୋରେ ଏହାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି ନା 2 ବର୍ଷର ବିଏଡ୍ ତାପରେ ବିଏଚଏଡ୍ ଅର୍ ଏମ୍ଏଡ୍ କୋର୍ସେସ୍ ଫର୍ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଇଣ୍ଟୁ ହାୟର ଏଜୁକେସନ୍ କେଉଁଠି ନା ସାମ୍ସ ଥ୍ରୋରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ଆଉ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଅଛି, ଏଠି କ'ଣ ଅଛି ନା ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ଡେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ, ତାପରେ ଡିଟେଲ୍ ଉପରେ ଆସିବା। ଓକେ, ତ ଡେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଅଛି, ଆଭେଲେବିଲିଟି ଅଫ୍ ଅନଲାଇନ୍ କମନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ଯେଉଁ CF ମାଧ୍ୟମରେ ଯେମିତି +3 ଆଡ଼ମିସନ୍ ହୁଏ ସେମିତି ତ ଯେଉଁମାନେ ବିଏ ବିଏସସି ପାସ୍ କରିଥିବେ ସେମାନେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବେ କ'ଣ ନା 29 ମେ 2024 ଠାରୁ 29 ମେ 2024 ଅଲରେଡ଼ି ଖୋଲିଗଲାଣି। ତେଣୁ 2ଟାରୁ ତେଣୁ 10 ଜୁନ୍ ଯାଏଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। କେତେ ନା 10 ଜୁନ୍ ଯାଏଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ଆପ୍ଲାଇଂ ଅନଲାଇନ୍ ମାତ୍ର 10 ଦିନ ଦିଆଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏଇଠି 10 ଦିନ ନାହିଁ, ମାତ୍ର 12-13 ଦିନ ଦିଆଯାଉଛି। ତେଣୁ ତାପରେ ତୁମର ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବ। ଏଇ 2ଟା ଡେଟ୍ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଜାଣିବାର। ତେଣୁ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଟେଷ୍ଟ କେବେ ଅଛି? ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଟେଷ୍ଟ ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଆଭେଲେବିଲିଟି ହଲ୍ ଟିକେଟ୍ ନାଇଁ କି SSBରୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ବୋର୍ଡ଼ରୁ ଆଭେଲେବିଲିଟି ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ମିଳିବ। କଣ୍ଡକ୍ଟ ଅଫ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଟେଷ୍ଟ ବିଏଡ଼୍ର ବିଏଚଏଡ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଟେଷ୍ଟ ଜୁଲାଇ 24, 2024ରେ ଏବଂ ଏମ୍ଏଡ୍ର ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଟେଷ୍ଟ ହେଉଛି 25 ଜୁଲାଇ 2024 ନାଇଁ। ତେଣୁ ବିଏଡ୍ ଉପରେ ସବିଶେଷ ଆମେ ଧାରଣା କରିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରସ୍ପେକ୍ଟସ୍କୁ ଯିବା। ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ପେକ୍ଟସ୍ ଅଛି ଫଟାଫଟ ମୁଁ ଟିକେ କହିଦେଉଛି। ତ ପ୍ରସ୍ପେକ୍ଟସ୍ରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଏଇ ଟେବୁଲ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟସ୍ ଅଛି। ହାଇଲାଇଟ୍ ଅଫ୍ ଦ କମନ୍ ପ୍ରସ୍ପେକ୍ଟସ୍, ନେମ୍ ଅଫ୍ ଦ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଇନଟେକ୍ କାପାସିଟି, କେତେ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ରେ ବିଏଡ୍ ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେବ, କ'ଣ ହେବ ଏଇଠି ଦେଖ ଲେଖା ହେଇଛି ନା। ଏଇଠି ଦେଖ ରାଧାନାଥ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଷ୍ଟଡିଜ୍ ସବୁଠାରୁ ନମ୍ବର 1 ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ କଟକର। ସେଇଠି 150 ଇନଟେକ୍ ମାନେ କେତେ ପିଲାକୁ ସିଟ୍ ନେବେ, କେତେ ସିଟ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ସବୁଠି ସମ୍ବଲପୁରରେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ପିଲାମାନେ, ସମ୍ବଲପୁର ବ୍ରହ୍ମପୁର ସବୁଠି ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛେ। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ହଉ, ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇଠି ହେଉଛି ଅନୁଗୁଳ ହଉ ନାଇଁ, ଅନୁଗୁଳ ଏବଂ ତାପରେ ଏଇଟା ନଳିନୀ ଦେବୀ ଓମେନ୍ସ କଲେଜ, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ନାଇଁ କି। ଟୋଟାଲ୍ ଦେଖ ପିଲାମାନେ 1650 ନାଇଁ 1650ଟି ସିଟ୍, 1650 ସିଟ୍। ତାପରେ ମଧ୍ୟ ସରିନି, ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସେଲ୍ଫ ଫାଇନାନ୍ସିଂ କୋର୍ସ ଅଛି। କେବଳ ସେଲ୍ଫ ଫାଇନାନ୍ସିଂ କୋର୍ସ ଆଉ ନର୍ମାଲ କୋର୍ସରେ କେବଳ ଡିଫରେନ୍ସ ହେଉଛି ଚାର୍ଜେସ୍। ଯେମିତିକି ନର୍ମାଲ କୋର୍ସରେ 5,000 ଯଦି ପଡ଼ିଲା ଗୋଟେ ବର୍ଷକୁ, ସେଲ୍ଫ ଫାଇନାନ୍ସିଂ କୋର୍ସରେ ତୁମକୁ 45,000 50,000 ପାଖାପାଖି ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ସେମ୍ ବିଏଡ୍ ତ ଟୋଟାଲ୍ ଉପରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ 2400, ଟୋଟାଲ୍ ଉପରେ କେତେ ନା 2400 ଦେଖିପାରୁଛ, 2400 ମାନେ 2400 ସିଟ୍, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସିଟ୍ ଅଛି। ଏଲିଜିବିଲିଟି କ'ଣ ଅଛି ନା କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ୱିଥ୍ ଏଟଲିଷ୍ଟ 50% ମାର୍କ ରଖିଥିବ। କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ମାର୍କ ରଖିଥିବ ନା 50% ମାର୍କ ରଖିଥିବ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ତୁମେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ କେଉଁମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ନା ଯେଉଁମାନେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ ୱିଥ୍ ଏଟଲିଷ୍ଟ 50% ମାର୍କ ଇନ୍ ବ୍ୟାଚଲର ଡିଗ୍ରୀ ବା ବିଏଡ଼୍ରେ। ଓକେ, ଇନ୍ ଦ ମାଷ୍ଟର ଡିଗ୍ରୀ ଇନ୍ ସାଇନ୍ସ ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ ହ୍ୟୁମାନିଟିଜ୍ 45% ନାଇଁ, ମାଷ୍ଟର ଡିଗ୍ରୀ ଯେଉଁମାନେ କରିଥିବେ MA କରିଥିବେ 45% ମାର୍କ। ତେଣୁ ବ୍ୟାଚଲର୍ସ ଇନ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ୱିଥ୍ ସ୍ପେଶାଲାଇଜେସନ୍ ସେମାନେ 55% ମାର୍କ, ଏମିତି ସବୁ ଅଛି ନାଇଁ କି। ତ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ 50% ମାର୍କ ନାଇଁ, SC BC SC ST PWD। ଦ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହୁ ହାଭ୍ appeared in their final year grade examination। ସାର୍ ମୁଁ ଫାଇନାଲ୍ ଇୟର୍ରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିଛି, ଫାଇନାଲ୍ ଇୟର୍ ଆମର ଏକ୍ଜାମ୍ ସରିନି, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଏକ୍ଜାମ୍ ସରିନି ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ନାଇଁ କି, ଏଇଟା ଗୋଟେ କଥା। ତ ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖ, ସେମାନେ ଆର୍ ଅଲସୋ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ଟୁ ଆପ୍ଲାଏ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଲସୋ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ଟୁ ଆପ୍ଲାଏ। ଆମର ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ପରୀକ୍ଷା ହେଇଛି, ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିନି, ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ଲାଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟାରରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଦେୟାର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଚର୍ ଫର୍ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଇଜ୍ ସବଜେକ୍ଟ ଟୁ ଦ ରିକ୍ୱାର୍ଡ଼ ଏଗ୍ରିଗେଟ୍ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେତେ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ରଖିବେ ତାପରେ ଯାଇକିରି ହେବ, କିନ୍ତୁ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପାଇଁ ଦେ ଆର୍ ଆଲାଉଡ଼୍।
ठीक अच्छे सी और ही मस्ट हैव पास्ड ओडिया केवल तुम ओडिया एलिजिबिलिटी कौन ना ओडिया MIL नहीं ओडिया MIL अप टू HSC माने 10th क्लास पर्यंत तुम ओडिया रहिबार अच्छी कि इक्विवेलेंस माने सर्टिफिकेट रहिबार अच्छी ताले बीएड पई अप्लाई करि परिबो बुझुछि तेणु एज क्राइटेरिया देखिले बीएड रे अप्लाई करिया पई एज क्राइटेरिया 1/5/2024 हैला 1/5/2024 जदि हिसाब करिवो SC ST SCBC कैंडिडेट पई केते 33 वर्ष पर्यंत से माने बीएड अप्लाई करि परिबे ठीक अछि तापर वुमेन कैंडिडेट जो माने SC हो SC ST हो SCBC हो से माने 33 वर्ष सी शुड नॉट हैव बीन बोर्न से सेम रखी तापरे फॉर जनरल कैंडिडेट 28 वर्ष रखी जनरल कैंडिडेट केते ना 28 वर्ष पिला माने देखि परछ 28 वर्ष पीएच कैंडिडेट 38 वर्ष पर्यंत से माने दे पारिबे एटा हला एलिजिबिलिटी नहीं अपर एज लिमिट इज इंक्लूसिव ऑफ एज रिलैक्सेशन फॉर अपर एज टा एज रिलैक्सेशन सहित रिजर्वेशन कहार अछि शेड्यूल कास्ट रो अछि आउ कार अछि ना देख 16% कहले चले शेड्यूल ट्राइब रो अधिक अच्छी 22% रिजर्वेशन है शेड्यूल ट्राइब रो आ सोशियली इकोनॉमिकली SCBC रो भी रिजर्वेशन अच्छी 11% रिजर्वेशन अच्छे देख लो अनरिजर्व अच्छी 50% अनरिजर्व माने कौन ना ये जो 50% भितर SC ST मध्य से माने जदि ट्राई करिवे चेष्टा करिवे सही 50% भितर मध्य से माने नहीं पारिवे सीटा ओके तेणु यहाँ हूँ कथा PWD अच्छी 5% नाई कि समस्ते बुझी जातु तापरे आमे देखिबा कौन ना प्रोविजन फॉर स्क्राइब सेटा छाड़िबा तापरे आमे देखिबा केते कौन एडमिशन जो हबो नहीं कि तो एडमिशन जो हबो पिला माने से एडमिशन रे CA रे अप्लाई करिवे कॉमन एप्लिकेशन फॉर्म रे साम्स थ्रू रे अप्लाई करिवे जोटा कि samsodisha.gov.in एटा को नहीं कि अप्लाई करेंगे कंप्यूटर सेंटर को जाके अप्लाई कले भलो नहीं कि तेणु एडमिशन केमती केमती हबो प्रोसेस टी अच्छी फेज 1 अच्छी फेज 2 अच्छी नहीं कि स्लाइड अप भी करि परिबे इंस्टीट्यूशन अनुसार तेणु अप्लाई करि दियंतु तापरे हमें देखिबा यहाँ पर हाउ टू अप्लाई रे samsodisha.gov.in को जिबे साम्स ओडिशा वेबसाइट को सेठी बीएड BHED और MAD माने क्लिक करिवे सेठी लेखाई थिबो एवं ताकू क्लिक कला परे अप्लाई तम करि परिबो रजिस्ट्रेशन करिया को पड़िबो न्यू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन करिकरी अप्लाई करिबो OTP वेरिफिकेशन हबो पासवर्ड जनरेट हबो एलिजिबिलिटी अप्लाई करिबो ठीक अछि तेणु अप्लाई कला परे आउ गोटे कथा होची जो इंस्टीट्यूशन एलोकेट हबो तेणु ऑप्शन दबा को पड़िबो से समय डॉक्यूमेंट कौन दरकार डॉक्यूमेंट बीएड पाई डॉक्यूमेंट होची डाउनलोडेड इंटीमेशन लेटर जोटा कि तुमर एडमिशन पाई तो इंटीमेशन लेटरटा नहीं कि सबमिशन टू द टाइम ऑफ एडमिशन माने तुमर जेतेबेले हेई जिवो आगे एंट्रेंस पाई प्रिपेयर हो तापर एडमिशन तेणु एडमिशन जेतेबेले एंट्रेंस माने पास करि जिवो सेतेबेले जो जो डॉक्यूमेंट कोडा लागिवो जेमती CLC कॉन्डर सर्टिफिकेट ऑल सर्टिफिकेट मार्कशीट इन ओरिजिनल चेक करिवे नहीं कि सब सर्टिफिकेट SC ST रिजर्वेशन जदि पाइथिबो सेगुडी को लागिवो एक्स सर्विस मैन हेतले भलो आ टिके किंतु एडमिशन फीसटा देखो एडमिशन फीसटा फर्स्ट ईयर रे गवर्नमेंट रे हेले नॉर्मल रे हेले 5000 केते 5062 टका केते कम देखो सेकेंड ईयर रे कौन ना 4618 टका सेही जिनसटी जदि सेल्फ फाइनेंसिंग पाइला माने टिके कम नंबर रहिला सेल्फ फाइनेंसिंग पाइलो ताले 45000 देखि पारछो 45000 पर ईयर दबा को पड़िबो आ एठी सेकेंड ईयर रे माने 45000 पर ईयर दबा पड़िबो किंतु उत्कल यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर रे बीएड कले 48000 दबा पड़िबो माने 50000 पाखा पाखी माने कि चालो बुझौची एंट्रेंस टेस्ट हबो एवं एंट्रेंस टेस्ट पाई तुमको कोन ना एग्जाम हैव टू डाउनलोड द एडमिट कार्ड ssbodisha.ac.in रू डाउनलोड करेंगे जो मैंने अप्लाई करेंगे तेणु सिलेबस फॉर एंट्रेंस टेस्ट तेणु पिला माने देखो सिलेबस फॉर एंट्रेंस टेस्ट मु सिलेबस देखे दूची सिलेबस तुम सेक्शन ए रे तुम कंपलसरी रहिबो सेक्शन ए रे बोथ आर्ट्स साइंस ग्रुप पाई कंपलसरी रहिबो तेणु लैंग्वेज रहिबो जनरल अवेयरनेस रहिबो रीजनिंग ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड्स रहिबो ठीक अछि तो एतिकी सब्जेक्ट रहिबो लैंग्वेज इंग्लिश
जनरल अवेयरनेस रीजनिंग टीचिंग एप्टीट्यूड समस्तଙ୍କର से इंग्लीशटा ही इंपोर्टेंट इंग्लीश नॉलेज नथिले किछ करि परिबोनी पिला माने तेणु तुमको बीएड ପାଇଁ प्रिपरेशन करिया पड़िबो सेक्शन साल भी 40 मार्क्स 40 मार्क रो परीक्षा हबो तो 40 मार्क रो जो 40 टी क्वेश्चन आसीबो बुझी होची तापरे गोटे मार्क लेखा ऑल क्वेश्चन साल भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन माने एमसीक्यू हबो तापरे आउ 60 मार्क माने टोटल माने केते मार्क टोटल होची 100 मार्क आउ 60 मार्क जोटा से माने सिलेक्ट करिवे वन सेक्शन एनी वन सेक्शन हला आंसर ऑल द क्वेश्चंस आंसर करिया को पड़िबो सेक्शन ए इज मेंट फॉर आर्ट्स ग्रुप सेक्शन बी द कैंडिडेट हु सिलेक्ट द आर्ट्स ग्रुप shall be to answer all questions in general English ओडिया एगुड़िक रहिबो कौन ना जनरल इंग्लीश ओडिया ज्योग्राफी हिस्ट्री आ पॉलिटिकल साइंस ओके एगुड़िक आर्ट्स पिला माने से माने यार आंसर देबे ज्योग्राफी हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस जोड़े स्कूल सब्जेक्ट से गुड़िकर क्वेश्चन आसीबो केमती केमती सिलेबस अछि देखो सेक्शन 1 जो 40 मार्क अछि सेथिरे तमरो इंग्लिश लैंग्वेज रे कॉम्प्रिहेंशन वोकाबुलरी यूसेज एगुड़िक पड़िबो तापर जनरल अवेयरनेस जीके रे तमर एगुड़िक सब पढ़ो पॉलिटिकल सिस्टम एवरीडे साइंस नहीं सब पढ़ो तापर तुम 10 मार्क रीजनिंग रे लॉजिक एंड एनालिटिकल माने रीजनिंग नहीं कि पैटर्न फैटर्न एगुड़िक सब अच्छी रीजनिंग रे 10 मार्क पढ़ो टीचिंग एप्टीट्यूड केमती पढ़ेबे एजुकेशन रिलेटेड ता तुमर 10 मार्क पढ़ो सब्जेक्ट जोटा कि सेक्शन 2 रे जनरल इंग्लिश ओडिया हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस अच्छी तेणु तुम्हें सेक्शन रे जनरल इंग्लिश रे तमरो 10 मार्क देखि परछो आउ टोटल होचे 60 मार्क जनरल इंग्लिश रे 15 मार्क ओडिया रे 10 मार्क हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस 20 मार्क ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स 15 मार्क टोटल 60 मार्क्स रो आर्ट्स पिला माने परीक्षा देबे तो डिटेल्स ऑफ द सिलेबस मु जाउ नै डिटेल्स को तेणु किसी देखि दउची इंग्लिश ओडिया हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स तेणु इंग्लिश रो एमती डिटेल्स जोटा कि पढ़ो कम्प्रिहेंशन वर्ड फॉर्मेशन एगुड़िक ओडिया रे पढ़ो कौन कौन आसो देख ध्वनि कम्प्रिहेंशन हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस अच्छी हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस भी नहीं कि आसो तापर ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स रो सिलेबस दे देछि तो सिलेबस फॉर बीएड साइंस स्ट्रीम रे जो माने पढ़ुछंती से मानकर सिलेबस एमती इंग्लिश रे सेम माने फास्ट सेक्शन 1 टा सेम समस्तकर आर्ट्स रो भी साइंस रो भी टीचिंग एप्टीट्यूड आ जनरल अवेयरनेस से टे साइंस उपर टे अधिक इंपोर्टेंस दिया जिवो सब्जेक्ट कौन पड़ो सेक्शन 2 रे फिजिकल साइंस 20 मार्क बायो साइंस 20 मार्क मैथमेटिक्स 20 मार्क्स तेणु फिजिकल साइंस रो कोर्स मैथमेटिक्स रो कोर्स बायोलॉजिकल साइंस रो कोर्स अच्छी तेणु माने एटा थिला ये तापरे ए जो इनफॉरमेशनटा आमे देखुतलु गवर्नमेंट रो इनफॉरमेशन सेटा हो जीवा नाही तेणु आमे ऑलरेडी डिस्कस कर दीचे कोटा डेट अच्छी कौन डेट अच्छी नहीं कि सो पिला माने एठी आमे आलोचना करूथिले जे केमिति केमिति बीएड एंट्रांस हुए कौन हुए बीएड ऊपर पूरा माने सविशेष विवरणी तेणु अप्लाई करिवार रेडी अप्लाई कर दियंतु एवं आगक बढ़ंतु प्रिपरेशन करंतु थैंक यू वेरी मच रहिली बंदी उत्कल जननी।